Hey friends, this is Pooja Agnihotri and I'm here again with this new series of professional communication for all engineering students of first year. Mostly students who face problem in understanding the very subject. I'm here to help them understand, making the subject more easier with my to the point notes. So let's start and ace it. Firstly, we will go through the entire syllabus to understand what all we have to study in detail. So let's start. In Unit 1, we have to study about the basics of technical communication. What is technical communication? What are the features? What is the difference between the general and technical communication? What about the language as a tool of communication? What are the different levels of communication? Interpersonal, intrapersonal, organizational. About all the levels we have to study. What is mass communication? The flow of communication, that is downward, upward, lateral or horizontal. What is the importance of technical communication and what are the barriers to communication? In the second unit, we have to understand about the constituents of technical written communication, about the words and phrases, word formation, synonyms and antonyms, homophones, select vocabulary of about 500 to 1000 new words, requisites of sentence, construction, paragraph development, techniques and methods like the inductive, deductive, spatial, linear, chronological, etc., the art of condensation, and about the various steps involved in it. In the third unit, we have to look into the forms of technical communication, about the business letters like the sales and credit letters, letters of inquiry, letters of quotation, order, claim and adjustment letters, job application and resumes, official letters, DO letters, comment letters, letters to authorities, etc. About the reports, about the types of reports, their significance, structure, style and writing of reports, technical proposals, their parts, types, writing of proposals, significance and the technical paper, project, dissertation and thesis writing, their features, methods and writing. In the fourth unit, we have to study about the presentation strategies, defining purpose, audience and locale, organizing contents, preparing outline, audio-visual aids, nuances of delivery, body language, space, setting nuances of voice dynamics, time dimension. And the fifth unit, we have to study about the value-based text readings, following essays from the suggested textbook with the emphasis on mechanics of writing and so on. So let's start about what is communication. Basically, this word communication is derived from the Latin word communicare, which means to share, to impart or to commune. Commune here means to share your emotions and feelings with someone without speaking, यानी बिना बोले हुए अपने emotions और feelings को किसी के साथ share करना. तो अगर हम literal meaning की बात करें communication की, तो वो होती है giving और sharing information. Communication एक बेसिकली प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन को शेयर करने का, और जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये एक फ़्लो की तरह होता है थ्रू अ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स. ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई भी मैसेज है उसे हमने एनकोड किया, एनकोड करने के बाद वो मैसेज जो है वो ट्रांसमिट हुआ, उसके बाद वो डीकोड हुआ, फिर रिसीवर तक पहुंचा, फिर रिसीवर का फीडबैक आया. बेसिकली यही सारे प्रोसेसेस जो होते हैं ये कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं. तो कम्युनिकेशन जो है एक डायनेमिक इंटरैक्टिव प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व करता है इफ़ेक्टिव ट्रांसमिशन फैक्ट्स का, आइडियाज़ का, थॉट्स का, फीलिंग्स का और वैल्यूज़ का. ये पैसिव नहीं होता है और ना ही and does not just happen. We actively and consciously engage in communication in order to develop the information understanding required for effective group functioning. तो ये जो है एक डायनेमिक प्रोसेस होता है क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है वैरायटी ऑफ फोर्सेस को और एक्टिविटीज़ को जो कि इंटरेक्ट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो कम्युनिकेशन जो है ये एक एसेंशियल कंडीशन है सोशल इंटरेक्शंस की, और ये जो हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही की रोल जो है वो प्ले करता है. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ टेक्निकल कम्युनिकेशन.
टेक्निकल कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ये बेसिकली क्या है, ये ट्रांसमिशन है और रिसेप्शन है फैक्ट्स का, फिगर्स का, आइडियाज़ का, मतलब ऑल सोर्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन का, जो प्रोफेशनल्स के थ्रू, जो कि बहुत डिफरेंट फील्ड से होते हैं, जैसे कि लाइक द इंजीनियरिंग फील्ड, मेडिसिन फील्ड, साइंस, रिसर्च, एजुकेशन, स्पेस, इन सारी फील्ड से बिलोंग करते हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन जो है वो दो पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड होता है, एक तो है रिटन कम्युनिकेशन एंड दूसरा है ओरल। रिटन कम्युनिकेशन जो है ये काफ़ी फॉर्मल होता है और ऑब्जेक्टिव होता है, वहीं पे जो ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वो लेस फॉर्मल होता है। रिटन कम्युनिकेशन जो है उसमें प्रॉपर रिकॉर्ड्स होते हैं और ओरल कम्युनिकेशन में प्रॉपर रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस नहीं होता है। रिटन कम्युनिकेशन में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो लिटरेट होनी चाहिए, वहीं पे ओरल कम्युनिकेशन में ऐसी कोई भी कंडीशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन में जो है वो इंस्टेंट फीडबैक जो है वो रिसीव नहीं होता है और पॉसिबल है भी नहीं। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इंस्टेंट फीडबैक जो होता है रेसिपिएंट का वो रिसीव होता है। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन जो है वो रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट को यूज़ करता है अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, वहीं पे ओरल में जो है ये फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है देन द रिटन कम्युनिकेशन। देन तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कि टेक्निकल राइटिंग क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल राइटिंग जो है प्रैक्टिकल राइटिंग होती है जो कि लोग करते हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर जॉब्स। ये लाइन ये जो है कि प्रैक्टिकल राइटिंग दैट पीपल डू एज अ पार्ट ऑफ देयर जॉब्स, ये सेइंग है किसकी, पॉले एंड रॉयडन की। टेक्निकल राइटिंग जो है रिलेटेड होती है वेरियस सेक्टर्स से, जैसे कि ट्रेड एंड कॉमर्स हो गए, साइंस हो गया, मेडिसिन है, स्पेस है, इंजीनियरिंग प्रोफेशन से, इन सारी फील्ड से टेक्निकल राइटिंग जो है वो रिलेटेड होता है। ये इंक्लूड करता है सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को, चाहे वो रिपोर्ट्स हों, प्रपोजल्स हों, टेक्निकल आर्टिकल्स हों, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स हों, ब्रोचर्स हों, इन सारी डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड करता है जो कि इशू किए जाते हैं जूनियर्स को या फिर अपने सुपीरियर्स को बाय दी टेक्नोक्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है कि टेक्निकल राइटिंग यानी टेक्निकल कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या होते हैं, वो क्या चीज़ें होती हैं जो हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यानी डूज़ एंड डोंट्स ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल कम्युनिकेशन। डूज़ में हो जाता है कि हमें जो है हमेशा फैमिलियर एंड ईजी वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए, हमेशा क्लियर सेंटेंसेस का यूज़ करना चाहिए, एक एक्टिव वॉइस का यूज़ करना चाहिए, जो सिंपल सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है उसका यूज़ करना चाहिए, जैसे कि जो नॉर्मल ऑर्डर हम कह सकते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इस सीक्वेंस में हमें यूज़ करना चाहिए सेंटेंसेस का। जो हमें सेंटेंसेस यूज़ करनी चाहिए वो मॉडरेट लेंथ की होनी चाहिए, मतलब उनमें जो मैक्सिमम जो वर्ड्स होने चाहिए वो 12 to 25 ही होने चाहिए। डोंट्स में जो आता है कि हमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स जो हैं उनके यूज़ को अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा सिंपल एंड ईजियर फैमिलियर वर्ड्स यूज़ करने चाहिए जो लोग ईजिली समझ पाएँ, हमारा जो मैसेज है वो उन तक ईजिली कन्वे हो पाए। वर्ड्स का रिपीटिशन हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज जो ये रेपिटिशन होता है ये हमारे जो एक्सप्रेशन की ब्यूटी है उसे इंस्टेंटली ख़त्म कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। हमें अवॉइड करना चाहिए रिडेंडेंट फ्रेजेस को जो कि लेंदी और इनकरेक्ट एक्सप्रेशंस होते हैं, इंस्टेड हमें वहाँ पे यूज़ करना चाहिए कंसाइज वर्ड और फ्रेज़ का, यानी टू दी पॉइंट जो वर्ड और फ्रेज़ है उसका यूज़ करना चाहिए। एक्यूरेसी है, ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है। एक्यूरेसी इन्फॉर्मेशन और एक्सप्रेशन की बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो ये इसके भी हमें ध्यान देना चाहिए। फोर्थली जो आता है कि पैराग्राफ्स जो हैं वो लॉजिकली डिवाइडेड होने चाहिए, सो दैट जो वो मैसेज है वो जो भी एक आइडिया है उसे वो कन्वे कर सके और एक सिंगली आइडिया को कन्वे करे। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ आइडियाज़ हो जाएंगे तो फिर हमें उसी टाइम पे उसको मैनेज करने के लिए पैराग्राफ्स का जो नंबर है उसे भी बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज़ लॉजिकल डिवीजन ऑफ पैराग्राफ्स कन्वेइंग ओनली अ सिंगल आइडिया। If more number of ideas, then number of paragraphs should be maximum. Okay, now next thing is about the basic difference about the technical writing and the general writing. टेक्निकल राइटिंग एंड जनरल राइटिंग में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि टेक्निकल राइटिंग जो है वो इंक्लूड करती है रिपोर्ट्स को, लेटर्स को, पेपर्स को, प्रपोजल्स हो गए, आर्टिकल्स हो गया, थीसिस हो गया और सम अदर फॉर्म ऑफ राइटिंग्स जो कि पॉपुलर होती हैं प्रोफेशनल्स के बीच में, लाइक द डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, ऑल ऑफ देम। ठीक है, जनरल राइटिंग में क्या होता है कि
लिटरली और अदर टाइप ऑफ राइटिंग्स होती है, जैसे कि हमारे एसेज हो गए, नॉवेल्स हो गए, पोएम्स हो गए, स्टोरीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें जनरल राइटिंग में आती हैं। जो रिप्लाई होता है टेक्निकल राइटिंग में वो रीडर से एक्सपेक्टेड होता है, बट जनरल राइटिंग में क्या होता है कि रीडर जो है वो रिप्लाई नहीं भेजता है टू द राइटर। वहीं पे टेक्निकल राइटिंग का जो पर्पस होता है वो एम करता है एट इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सप्लेनेशंस। बट जनरल राइटिंग में क्या होता है कि ये इसका जो मेन एम होता है वो अम्यूज़मेंट पे होता है, एंटरटेनमेंट पे होता है, इंस्पायरिंग रीडर्स पे होता है, ठीक है, ये इसका एम होता है। जो स्टाइल होता है टेक्निकल राइटिंग में वो काफ़ी एक्यूरेट एंड प्रिसीज होता है, इम्पर्सनल होता है, ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ होता है, ठीक है। बट पोएट जनरल राइटिंग में क्या हो जाता है वो काफ़ी पोएटिक होता है, डेकोरेटिव होता है एंड बॉम्बास्टिक होता है, यानी काफ़ी पर्सनल होता है और सब्जेक्टिव होता है। नेचर जो टेक्निकल राइटिंग का होता है वो फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, बट जनरल राइटिंग का जो नेचर होता है काफ़ी इमेजिनेटिव होता है, ठीक है। लैंग्वेज होती है टेक्निकल राइटिंग की वो सिंपल होनी चाहिए बट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। बट जनरल राइटिंग की जो लैंग्वेज है वो एक्स्ट्रावेगेंट होनी चाहिए और पॉम्पस काइंड ऑफ होनी चाहिए, ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप ऑफ लैंग्वेज, हाई फाई लैंग्वेज होनी चाहिए। जो टेक्निकल राइटिंग है उसका यूज़ जो है वो बिज़नेस में होता है, ठीक है। सो ये काफ़ी स्पेसिफिक प्रोफेशन से रिलेटेड होती है, बट जो जनरल राइटिंग है ये रिलेटेड होती है टू द लाइफ एज अ होल, बट मतलब हमारी एक जनरल लाइफ जो है उससे रिलेटेड होती है, हमारी डे टू डे एवरी डे लाइफ से रिलेटेड होती है, ठीक है। यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये रिलेटेड होती है लाइफ इन जनरल से। जो टेक्निकल राइटिंग में वोकैब होती है, जो वोकैबलरी होती है वो क्वाइट टेक्निकल होती है, वहीं पर जनरल राइटिंग में जो वोकैब होती है वो जनरल होती है। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में ये पढ़ा कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है क्या, उसके क्या फ़ीचर्स हैं, क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या अवॉइड करनी चाहिए, एक टेक्निकल राइटिंग और जनरल राइटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी। जो नोट्स ये हैं काफ़ी प्रिसाइज्ड और कंसाइज्ड और टू दी पॉइंट नोट्स हैं। आप एक दो बार इन्हें रीड करेंगे तो ईज़िली चीज़ों को समझ जाएंगे एंड ईज़िली लिख सकते हैं, ज़्यादा बुक्स कंसल्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अब जो हम पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि जो कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस होता है, जो वेरियस स्टेजेस होते हैं कम्युनिकेशन इन्वॉल्व, जैसे कि आइडिया हो गया, फिर उसकी एनकोड करना हो गया, फिर उसका ट्रांसमिशन हो गया, फिर उसकी डिकोडिंग हो गई एंड लास्ट में रिसीवर तक पहुंचने के बाद जो उसका फीडबैक या रिस्पांस आता है रिसीवर का, सारे जो वेरियस स्टेजेस हैं कम्युनिकेशन के, इनके बारे में पढ़ेंगे। और प्लस हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज का क्या यूज़ है एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि जैसे कि लैंग्वेज जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होती है, आर्टिफिशियल है या रेस्ट्रिक्टेड है, रिकर्सिव है, सोशल है, ये सारी चीज़ों को, ठीक है, आर्बिट्री है यानी इलॉजिकल और रैंडम काइंड ऑफ है। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लैंग्वेज की, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर. In the next video, we'll study about the various characteristics of languages and the stages of communication. So stay tuned with it. We'll see you in the next video. Take care. Bye-bye.